Welcome back students. This is class 8th mathematics and today we will start exercise 1.2. आज अपन है ना 1.2 जो एक्सरसाइज है 8th क्लास की वो अपन स्टार्ट करेंगे. Last time we have completed two questions, first and second of exercise 1.2, and today we will start next question, question number 3. Third question is verify the property x into y into z is equal to x into y into z of rational numbers by using following. First is x is equal to 1, y is equal to minus 1 upon 2, z is equal to minus 1 upon 4. Second question is x is equal to 2 upon 3, y is equal to minus 3 upon 7, z is equal to 1 upon 2. C is x is equal to minus 2 upon 7, y is equal to minus 5 upon 6, and z is equal to 1 upon 4. And also tell what is the name of this property. What is the, इसी के अंदर साथ में ऐड है क्वेश्चन और यहाँ लिख देते हैं इसको. What is the name of property. यानी इस प्रॉपर्टी का आपको नेम जो है इस प्रॉपर्टी का वो भी आपको स्टूडेंट्स you have to tell also name of this property. यानी इस प्रॉपर्टी का आपको नेम भी बताना है कि what is will be the name of this property. Students, you have seen that we have three numbers, we have three digits, and first bracket is using with y and z, and after then on right hand side the brackets are used with x and y. Brackets are changed and all things are same. This type of property is called associative property. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? Associative property. This is called associative. So students, this type of property is called associative property. इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसको अपन associative property बोलते हैं. तो यहाँ पे you can see that verify the property x into y plus z and x into y into z. यानी अपने को एक बार LHS सॉल्व करना है और एक बार अपने को RHS सॉल्व करना है. Here you can see that we have three questions. अपने पास कितने क्वेश्चंस है अपने को सॉल्व करने हैं? We have three questions, जिसमें से एक अपन अभी कर लेते हैं सॉल्व. बाकी के जो two questions है you will solve self at home. That will be your homework. वो आपका होमवर्क होगा. Okay. First of all, I would like to solve first question A. अब देखो यहाँ पे a x की, पहले तो आप है ना इसको आंसर में आप इस तरीके से करोगे. इसका आंसर सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करें. इसमें x की वैल्यू बताओ क्या है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ द x इज 1, वैल्यू ऑफ y इज minus 1 upon 2, and the value of z is equal to 1 upon 4. Okay, now we have to prove x plus x into y plus z, y into z is equal to xy into z. ये अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक LHS. इस तरीके से आपको LHS लेना है. LHS क्या है? x into y into z.
अब देखो x की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y -1/2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, एंड द वैल्यू ऑफ z इज 1/4. So students, here I will write first of all we will multiply, we will solve bracket. Always remember, first of all we will solve ब्रैकेट. सबसे पहले अपन है ना, जो ब्रैकेट जो गिवन है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपने को क्या करना है, सोल्व करना है. तो x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 इंटू -1/2 इंटू 1/z. हियर आई विल राइट दिस 1 इंटू -1 को माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा. 4 2 जा क्या हो जाएगा 8. अगेन व्हेन वी मल्टीप्लाई -1/2 टू 1, जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट टू -1/2. दिस इज द LHS. एंड नाउ I will solve RHS. RHS is x into y into z. What is the value of x? 1. x की वैल्यू क्या है 1 इंटू वैल्यू ऑफ y -1/2 and the value of z, the value of z is 1/4. First of all I would like to solve bracket. सबसे पहले अपन इसमें ब्रैकेट सोल्व करेंगे एंड आफ्टर देन आई विल मल्टीप्लाई बाई 1/4. उसके बाद अपन 1/4 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई. ओके स्टूडेंट्स, 1 इंटू -1/8 -1/8 इंटू 1/4. माइनस विल बी रिमेन एज इट इज. 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 एंड 8 इंटू 4, 8 4 जा 30. तो स्टूडेंट्स here you can see that the value of y is -1/2. Here we have to write -1/2. So here the answer value 4 2 is 8. Students, we can see that LHS and RHS both are equal to each other. नीचे आप लिखोगे इस तरीके से, आफ्टर डूइंग दिस LHS is equal to RHS. LHS RHS both are equal. नीचे लिख देना hence proof. इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, you have to solve this. Okay, and now you will solve B part and C part at home. This is your homework. Now we will jump in the question 4th. Okay, question number 4. Question number 4 is write multiplicative inverse of each of following. Write multiplicative inverse of each of following. First question is 2/7. Second, B part is -3/5. C part is 8/-11, and D part is -4/-9. We have 3 parts, A, B, C and D. And students, now we will solve. We have to find out the multiplicative inverse of each of following. यानी कि अपने को इन सब का जो multiplicative inverse है वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है. We have to find out the multiplicative inverse.
ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके बारे में मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी। आपको जस्ट रेसिप्रोकल करना है। आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है, और वो ही क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम सॉल्विंग बी पार्ट। Multiplicative inverse of -3/5 is -5/3। यू हैव टू जस्ट रेसिप्रोकल, यानी आपको ना सिर्फ इसका रेसिप्रोकल जो है वही करना है। जैसे कि -3/5 है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हो जाएगा आपका -5/3। अब आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, यू कैन चेक दैट। सपोज करो इन दोनों मल्टीप्लाई करो, इन दोनों -3/5 मल्टीप्लाई -5/3। When we multiply both minus and minus, it will be plus. 5 threes are 5 threes are 15, and here 5 threes are 15. After cancelling to each other, we will get 1. तो देखो, जब भी आप ध्यान में रखना, if you are multiplying any multiplicative inverse of that number या with that number, then answer will always be 1। यानी कि जो आंसर है वो क्या होगा, आपका 1 होगा। जब भी आप है ना, कोई ऐसे टू नंबर्स है आपके पास, सपोज यू हैव टू नंबर्स एंड बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर है ना कोई भी टू नंबर है और उनका मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, listen to me students carefully, if multiplication of two numbers is 1, then both number will be multiplicative inverse of each other। यानी कि वो दोनों ही ना एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अगर आपसे मैं कहूं कि -3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बताओगे, तो आप कहोगे माइनस का 5/3। And if I ask you what is the multiplicative inverse of -5/3, then you will tell the answer is -3/5। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टूडेंट। एंड इसका जो ए पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट, you will do that part self at home, that is your homework। Okay, now we will move on next question। Next, question number 5. Multiply 3/18 with its multiplicative inverse। With its multiplicative inverse। Students, in this question you have to multiply, यानी आपको क्या करना है, नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन, वैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 3/18 विद इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसके साथ ही आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 3/18 with its multiplicative inverse, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसने बोला है ना साफ साफ, देखो हियर यू कैन सी दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी आपको ना इसका पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
of 3/18 is 18/3, यानी कि जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 3/18 का, इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है दैट विल बी 18/3, यानी कि ये 18/3 आएगा. सो नाउ व्हाट, मल्टीप्लाई 3/18 विद इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी कि 3/80 को इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है उसके साथ अपने को मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो. 3/18 इंटू 18/3, 3 से तो 3 कैंसिल एंड 18 to 18 कैंसिल, रिजल्ट विल बी 1. ये देखो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर वी आर गेटिंग आंसर इज 1. इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is add -2/5. Add -2/5 and its multiplicative inverse. Add -2/5 and its multiplicative inverse, यानी कि ये जो -2/5 है इसको वी हैव टू ऐड, यानी कि इसको अपन ऐड करना है. बट किसके साथ ऐड करना है? मल्टीप्लीकेटिव एंड इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ना उसके साथ अपने को क्या करना है, इसको प्लस करना है, उसके साथ अपन इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है ना जैसे आपने ये वाला किया था वैसे ही है, बट ना हियर यू कैन सी दैट वी वर मल्टीप्लाइंग, बट हियर वी विल एडिशन, वी विल यूज एडिशन ऑपरेशन, वी विल ऐड. So first of all in answer you will write multiplicative inverse of -2/5 is -5/2. देखिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -2/5 इज -5/2, यानी कि -2/5 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो होगा -5/2. बट नाउ in above question we are adding, but now in the question number 6 we will add them. So -2/5 plus -5/2, यानी -2/5 में अपन ऐड करेंगे माइनस का 5/2. Here you can see that plus minus minus. Now suppose करो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. Now you will take LCM. LCM will be 10. 10 को डिवाइड करो 5 से, we will get 2 and 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, then 2 2 is 4 minus again divide 10 by 2, we will get 5 and 5 5 is 25. 25 and 4 it will be equal to minus का 29/10. So students, our final answer of the question 6 is -29/10. Okay, next question is okay students, question number 7. Multiply 3/-7. Multiply
3/-7 and its additive inverse. And its additive inverse. Students, this is the same question as above two questions. जो अपन ने पीछे किए थे वैसा ये क्वेश्चन है, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द एडिटिव इनवर्स. यानी अपने को ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, दिस एडिटिव इनवर्स, ये जो एडिटिव इनवर्स है ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द एडिटिव इनवर्स. हाउ कैन वी फाइंड द एडिटिव इनवर्स? देखो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तो मैंने आपको बताया कि आपको जस्ट रेसिप्रोकल करना है, वही आपका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है. ठीक है, बट एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स में आपको रेसिप्रोकल नहीं करना है. यू डोंट हैव द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर. आपको गिवन नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड नहीं करना है. यू विल जस्ट चेंज द साइन. यानी कि आपको क्या करना होता है कि जो साइन होता है ना, वही आपको क्या करना है, चेंज करना है. यू हैव टू चेंज जस्ट द साइन ऑफ द गिवन नंबर. यानी गिवन नंबर का जो भी साइन दे रखा है, अगर गिवन नंबर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो, अगर गिवन नंबर नेगेटिव है तो उसको अपन क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट हियर. एडिटिव इनवर्स ऑफ देखो ये जो माइनस है ये चाहे 7 के आगे लगाओ, यू कैन पुट इट इन फ्रंट ऑफ 3 एंड यू कैन पुट इट इन फ्रंट ऑफ 3/7. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख देना इसको. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7 इज प्लस का 3/7. ये एडिटिव इनवर्स है. दिस इज द एडिटिव इनवर्स. -3/7 is 3/7. Now what? Students, now we will change. Additive inverse of -3/7 is 3/7. Multiply. We have to multiply both numbers. यानी कि अपने को ये जो टू गिवन नंबर्स अपने पास जो आ रहे हैं, इन दोनों नंबर्स का अपने को क्या करना है, we have to just find multiplication. According to the question, we have to multiply. यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -3/7 into 3/7, it will be -9 and 7 7s are 49. इस तरीके से आपको इसका आंसर यू हैव टू राइट. Okay student, next question is question number 8. Question number 8. Verify the property x into y plus z is equal to x into y plus x into z of rational numbers by taking following
बाय टेकिंग फॉलोइंग। इस तरीके से अपने को वैल्यूज जो है वो अपने को क्या करनी स्टूडेंट्स फाइंड करनी। ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट A is x is equal to -1/2, y is equal to -3/4 and z is equal to 1/4. B part is x is equal to -2/3, y is equal to -4/6 and z is equal to -7/9. Okay students, this is the question number 8 and in this question we have two part A and part B, and you know that we will solve only one part, यानी कि अपन है ना एक पार्ट अपन सोल्व करेंगे और दूसरा पार्ट सेकेंड पार्ट जो है वो आपको घर पे सोल्व करना है। यू हैव दिस दैट विल बी द होमवर्क, वो आपका होमवर्क होगा। ओके, आंसर the value of x is equal to -1/2, y is equal to -3/4 and z is equal to 1/4, and we have to prove x into y plus z is equal to x into y plus x into z. Student, first of all we will solve LHS part and after then we will solve RHS part, and remember that LHS and RHS both must be equal to each other. ये दोनों ही पार्ट जो है वो आपके क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेक लेफ्ट हैंड साइड। What is the value of x? -1/2, -1/2. Y, value of y is -3/4 plus the value of z 1/4. देखो मैंने क्या किया, I replaced the values of x, y and z from the question. अपन ने कुछ नहीं किया है, अपन ने तो केवल x, y, z की जो वैल्यू है वही अपन ने क्या किए, रिप्लेस किए। We just replace the value of x, y and z. Now first of all we will solve bracket. Here you can see the LCM in the denominator is 4 and 4. Denominator जो है अपना वो क्या है, 4 and 4 है। So student, what will be the LCM? What will be the LCM? अपना जो LCM है वो क्या होगा, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो here you can see that LCM will be 4, यानी अपने पास जो LCM है वो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 1 जा 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस 4 का 4 में डिवाइड करोगे तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 1। -3 प्लस 1, -3 प्लस 1। जब आप -3 में +1 करोगे, व्हेन यू -3 + 1 देन यू विल गेट -2। -2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आएगा। आफ्टर देन यू विल जस्ट मल्टीप्लाई, आपको ना जस्ट मल्टीप्लाई करना, माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 into 2 यानी कि मीन्स 2 and 4 to the 8. You can also cut 2/8. You can cut both numbers by 2. 2 से आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। जैसे 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 और 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 4। अगर आप 2/8 तक भी सपोज दैट अगर आप क्वेश्चन आंसर छोड़ते हो तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन आल्सो कट बोथ नंबर्स इफ बोथ नंबर्स आर कॉमन फैक्टर, हैव ए कॉमन फैक्टर। अब आपको जैसे कटेशन में आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अगर कोई 2 नंबर्स डिवाइड में है
यू कैन कट देम बाई एनी टेबल। लेकिन टेबल ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ना सेम नंबर से वो ये जो बोथ नंबर है ये आपके डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास 2 और 8 है। अब ये किसी बच्चे ने सोच लिया कि सर मैं इसको 2 से कट नहीं करूंगा, आई वुड लाइक टू कट बाई 4, यानी 4 से कट करना है। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। यानी कि 8 में ना 4 का डिवाइड करना है, जिस टेबल के साथ अपने को कट करना है उसका डिवाइड करना होता है। तो 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। बट क्या 2 में आप 4 का डिवाइड कर सकते हो? यू कांट डू दैट। आप है ना इस तरीके से कट नहीं कर सकते। तो आपको कुछ एक ऐसी टेबल देखनी है जिस जो मतलब ना दोनों जो नंबर्स है आपको उन दोनों को वो डिवाइड कर सकते हैं। अपने को एक ऐसी टेबल लेनी है जो दोनों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट दिस इज द LHS। और LHS क्या आ गया अपने पास, 1/4। नाउ वी विल टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज x into y plus x into z। x, the value of x is -1/2 and the value of y is -3/4। value of x -1/2 and the value of z, the value of z is 1/4। Students, again we are replaced the values of x, y and z। अपने को ना जो वैल्यूज है x, y और z की, वो वैल्यूज क्या करनी है, अपने को रिप्लेस करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस एंड माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व मल्टीप्लाई। ध्यान में रखना, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिवाइड सॉल्व करते हैं। डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद में आप चाहो तो प्लस या माइनस कोई भी सॉल्व कर सकते हो। तो हियर -1/2 into -3/4, you can see minus and minus plus 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, again plus minus minus 1 into 1, 1 1 जा 1, 4 into 2, 4 2 जा 8। now you can take LCM। LCM will be 8। 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, यानी कि 8 में 8 का डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1 एंड 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 3। 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 3 minus 1 it will be equal to 2। again you can cut them after cuttation, यानी कि 2 से इन दोनों में डिवाइड कर सकते हो आप, तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 एंड व्हेन वी डिवाइड 8 then we will get 4। Student, you can see that LHS and RHS, LHS and RHS both are equal to each other। यानी अपने पास LHS और RHS दोनों क्या आ गए, एक दूसरे के इक्वल आ गए। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay student, next question is question number 9। according to question number 9, for x is equal to 3/7 and y is equal to -9/8, verify that first is x plus y is equal to y plus x and second part is x into y
is equal to y into x. In this in the question number 9 you have the value of x and the value of y. According to the question, the value of x is 3.7 and the value of y is minus 9 upon 8. And first question is x plus y is equal to y plus x, and the second is x into y is equal to y into x. तो इसमें आपको क्या करना है कि आप यू हैव टू जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. In this question we don't have z, so you will replace only the value of x and y in both questions, and you will prove LHS and RHS both are equal. यानी कि आपको LHS और RHS इन दोनों को क्या प्रूफ करना है? इक्वल प्रूफ करना है. So students, let's start. First of all we will solve question number first. X plus y is equal to y plus x by taking LHS. LHS is x plus y. Okay student, x plus y. X, what is the value of x? 3 upon 7. And plus y, what is the value of y? Minus 9 upon 8. It will be minus 9 upon 8. You know, plus minus minus and 9 upon 8. What is the LCM of 7 and 8? 7 और 8 जो है इसका LCM क्या होगा? तो students, I think you know this very well. How can we find the LCM of given numbers, because you are in 8th class. So LCM of these two numbers will be 56. इन दोनों नंबर्स का जो LCM है वो क्या आएगा? 56 आएगा. ओके, 56 डिवाइड 56 बाई 7, यानी 56 में आप 7 का डिवाइड करो, देन यू विल गेट 8. एट 8 का 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, माइनस अगेन डिवाइड 56 बाई 8, यानी कि 56 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 7 जा 56. So 7 times and 7 का 9 से multiply, 63. Now what will we do? Now 24 minus 63, यानी 24 में से आपको 63 जो है वो माइनस करना है. तो you can see it here. 63 में जब आप 24 का माइनस कर रहे हो, तो students always remember that when you subtract any small number, when you subtract एनी बिगर नंबर, कोई भी अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है, यू हैव अ ग्रेटर नंबर एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग ए ग्रेटर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर, देन आंसर ऑलवेज रिमेंबर द आंसर विल बी नेगेटिव, यानी कि जो आंसर है वो क्या आएगा? आपका नेगेटिव आता है. सो हियर यू कैन सी दैट आंसर विल बी नेगेटिव एंड माइनस 39 अपॉन 56. द आंसर विल बी माइनस 39 अपॉन 56. तो ये तो आया इसका स्टूडेंट LHS पार्ट. नाउ व्हाट वी विल सॉल्व RHS पार्ट. RHS is y plus x. Y plus x. What is the value of y? Minus 9 upon 8. Plus what is the value of x? 3 upon 7. वही सेम चीज, LCM will be 56. Divide 56 by 8. 56 को 8 में से डिवाइड करेंगे. When we divide 56 by 8, then we will get 7 and 7 9 are minus 63. Minus 63. Plus again divide 56 by 7. 56 को 7 से डिवाइड करेंगे. It will be 8 and 8 3 are 24. 8 3 are 24. Okay, minus 63 plus 24. Minus 63 plus 24. Again you can see that here this is negative and this is positive number, and the negative number is greater. यानी आपको एक तरीके से 24 में से 63 को क्या करना है? माइनस. तो आंसर विल बी इन नेगेटिव. ये आ जाएगा आपके पास, आंसर आएगा minus 39 upon 56. So student, you can see that LHS and RHS.
LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे के इक्वल है. सो स्टूडेंट, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल सोल्व सेल्फ. इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको सेल्फ सोल्व करना है. देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, ध्यान में रखना. यहाँ पे देखो जैसे प्लस है, बट नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी डोंट हैव पॉजिटिव साइन, वी हैव नेगेटिव साइन. अपने पास क्या है, नेगेटिव साइन है. तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है. तो इसमें आपको एलसीएम वगैरह नहीं लेना. जब आप सेकंड पार्ट को सोल्व करोगे ना तो आपको एलसीएम नहीं लेना. यू हैव टू जस्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी. और एलएचएस आरएचएस क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. For A is equal to 2/3, B is equal to 4/5, and C is equal to -5/6. Verify that first question is A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Second is ABC. And third is AB minus C is equal to AB minus S. AB minus S. These are three questions. In the question number 10, we have the values of A, B and C. यानी A, B और C की अपने पास वैल्यूज दे रखी है. The value of A is 2/3, the value of B is 4/5 and the value of C is -5/6. And we have to solve these three questions. एक में तो आपको पॉजिटिव दे रखा है, एक में आपको नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन और एक में ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है. ये अपने को सोल्व करनी है, वो ये इक्वल वेरीफाई करना है ओनली दैट. तो अपन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इन फर्स्ट क्वेश्चन एलएचएस लो पहले. एलएचएस क्या आपके पास, व्हाट इज द एलएचएस? ए प्लस बी प्लस सी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 2/3. value of B 4/5 and the value of C is -5/6. प्लस माइनस माइनस, चलो इसको अपन बाद में कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक एलसीएम. 3 and 5 का जो एलसीएम है इट विल बी 15. 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 3 and 4 3 जा 12 प्लस माइनस -5/6. Okay, 10 and 12 it will be 22/15 minus 5/6. Now you will take again LCM of 15 and 6. यानी आपको 15 और 6 का LCM फाइंड करना है. देखो अगर किसी बच्चे को LCM फाइंड करना नहीं आ रहा है तो वो यहाँ पे समझ सकता है. जैसे मान लो अपने पास 15 और 6 है और इसका अपने को एलसीएम फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड बोथ नंबर बाय एनी स्मॉलेस्ट नंबर. जैसे कि 2, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट 6 ना वो 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. सो आई विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एंड हियर 15 एज इट इज रहेगा क्योंकि 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. नाउ डिवाइड 6 by 2 देन वी विल गेट 3. अगेन I am unable to divide by I am unable to take 2. अब मैं 2 नहीं ले सकता because both numbers are not divisible by 2 and both numbers are divisible by 3. यानी कि 3 से अब डिवाइड हो सकता है. So 3 5 and 3 1 जा 3. Again 5 1 and 1. 5 3 जा 15 and 15 2 जा
60. So LCM will be 60. 60 में 15 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 4. 4 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 88. ओके, अगेन डिवाइड 60 बाई 6, देन विल गेट 8 एंड 8 का 10 और 10 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50. 88 माइनस 50, 88 में से आपको 50 क्या करना माइनस, then you will get 38 upon 60. Like this you will solve right hand side. सेम मेथड से आपको राइट हैंड साइड भी क्या करनी स्टूडेंट सोल्व करनी. राइट हैंड साइड इज दिस वन, a b plus c. The value of a 2/3, the value of b 4/5 and the value of c माइनस का 5/6. तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 5/6. Now you will take LCM. 6 and 5 का जो LCM है वो आ जाएगा 30. Divide 30 by 5, then you will get 6 and 6 into 4. 6 4s are 24. Minus again divide 30 by 6, 5 and 5 5s are 25. So student you will get 25 minus 24 minus 25. आपके पास ये आ जाएगा. After then 2/3, 24 minus 25, it will be minus 1 upon 30, and 30 will be the LCM. Again divide 30 by 3, you will get 10. 10 into 2 यानी कि 20 minus 30 same, so the answer here will be 1. So on right hand side you will get 19 upon 30. And on left hand side here we have 38 upon 60. ये 38 upon 60 है ना, ये 2 से क्या हो सकता है कट हो सकता है, कैंसिल. 2 से आप 38 को कट करोगे तो 19 और 2 से 60 को कट करोगे तो 30. You can see it here, LHS and RHS both are equal. इस तरीके से आपको ना LHS RHS को क्या करना है इक्वल प्रूफ करना है. एंड फर्स्ट इज वेरीफाइड, फर्स्ट जो है वो आपका वेरीफाई हो जाएगा. सेम मेथड आपको अप्लाई करना है सेकंड में. सेकंड में देखो क्या है, सेकंड में पहले आप LHS लो. LHS क्या है A B into C. A की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A 2/3, वैल्यू ऑफ B 4/5 एंड द वैल्यू ऑफ C माइनस का 5/6. अब इसमें देखो आपको प्लस नहीं करना है. इन द सेकेंड ऑप्शन वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई में आपको कभी भी एलसीएम लेना नहीं होता है, तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना होता है. 4 2 8, 5 3 15. Here you can see 8/50 is of positive and 5/6 is of negative. So plus minus minus, 8 5 are 40 and 15 6 are 90. 0 से 0 काट सकते हो, 4/9 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा. तो दिस इज द LHS part. And like this you will just solve RHS part. What is the value of A 2/3, value of B 4/5 and the value of C minus का 5/6. So student 2/3, 5 4s are 20 and 6 5s are 30 और minus as it is. Again 20 into 40, 20 into 2, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को ले लेना बाहर, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90. अगेन कट minus 4/9. तो स्टूडेंट यू कैन सी दैट LHS and RHS आर आल्सो इक्वल इन द सेकेंड क्वेश्चन. ये भी ना सेकेंड क्वेश्चन में क्या है एक दूसरे के इक्वल है. सो स्टूडेंट्स द थर्ड क्वेश्चन इज A and bracket B minus C. Here is A into B minus AC, यानी AB minus AC है. ये देखो इस तरीके से AB minus AC. इसका ये आप लोग सेल्फ करोगे, पहले आप वही LHS सोल्व करोगे तो B minus C है, तो आप पहले LHS सोल्व करोगे और उसके बाद में आप RHS सोल्व करोगे. एंड बोथ आल्सो मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर. Some students are not depositing their PDF file and there are many students जो अब तक ना
बुक्स नोटबुक्स परचेज नहीं किए. सो स्टूडेंट, परचेज योर बुक्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम द स्कूल and start your study regular. Thank you. Have a nice day.